Mr. Kaustav Mishra, hearty congratulations on securing All India rank 11 in Mechanical Engineering branch in GATE 2022. Thank you, sir. Yeah. Mishra, it is a very proud moment for you, for your parents, as well as for our ACE Engineering Academy. See, Yes, sir. I'm coming to know about your All India 11th rank. What was your first reaction? Sir, actually, I was expecting a under 10 to be very frank, but due to the normalization, somehow what marks I was expecting, I couldn't get that. Means जितना मैं expect कर रहा था कि marks पढ़ना चाहिए उतना बड़ा नहीं, तो around 1.5 or 2 marks जितना ज़्यादा मैं right. Nothing to regret, Mishra, because even 11th rank also very good rank, right? So really, right now I am absolutely happy. I have no regrets. Yeah, you deserve all the congratulations, right? So once again, hearty congratulations from our ACE Engineering Academy side also. Thank you so much, sir. Mr. Mishra, you are ACE Engineering Academy student. You tell us which coaching program you have availed from our ACE Engineering Academy. Sir, I took test series from ACE Engineering Academy for GATE 2022. So you have taken test series from ACE Engineering Academy. Yes, sir. Yeah. Okay, Mishra, very good. So tell us what was the role of ACE Engineering Academy test series in your success? Sir, as किसी भी गेट एस्पिरेंट के हिसाब बड़ा प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज ही आपको एक नॉर्मल गाय से लेके एक रैंकर तक लेके जाती है. मतलब प्रिपरेशन करना और क्वेश्चंस करना, बाकी सारी चीजें करना इज अ डिफरेंट थिंग, बट टेस्ट अपने आप को करना और फिर वहां जाके वही टेस्ट को रेप्लिकेट करना इज अ डिफरेंट थिंग. तो टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मेरे हिसाब से. Okay, oh, that's fine. I do agree, Mishra. Absolutely correct. So how ACE Engineering Academy test series helped you in securing such a very good rank? Yes, sir. ACE Engineering Academy में सर मैंने जैसे सबसे पहले स्टार्ट किया था मैंने पार्ट टेस्ट से. जैसे कि ACE Engineering Academy में we have around 3 सब्जेक्ट वाइज काफी पार्ट टेस्ट भी है इसमें और काफी फुल लेंथ टेस्ट भी है. तो मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था पार्ट टेस्ट से. पार्ट टेस्ट बेसिकली इसलिए बनाए गए होते हैं कि वो आपका चेक करते हैं कि आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा है आपने हर कॉर्नर से उस सब्जेक्ट के बारे में चीजें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, राइट. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज जो पार्ट टेस्ट होता है उसको अपने आप को इवैल्यूएट करने के लिए देखते हैं, बट मैंने इसको सीखने के नजरिए से देखा था. तो मैंने पार्ट टेस्ट ऐसे लिए और उसके बाद फिर मैंने अराउंड दिसंबर से स्टार्ट किया था फुल लेंथ टेस्ट. और उसके बाद फिर मैंने अराउंड 15 या 14 FLTs होते हैं इस इंजीनियरिंग अकेडमी में, एस में. तो मैंने सारे के सारे FLTs अटेम्प्ट किए थे. आप कितने टेस्ट दिए थे आप सर मैंने सारे टेस्ट दिए थे. सारे टेस्ट दिए थे? ऑल फुल लेंथ टेस्ट मैंने सारे दिए थे. Okay, very good. So in our ACE test series, where you used to stand in the exams? Sir, in ACE I used to come in top 10, 20 or 25 every time. Means I have come in top 5, top 10 also, but I never went beyond 20, 25. Okay, right. So that's fine. So what I understand, sometimes you used to be in the top 5, top 10, occasionally in the top 20 also. So that implies that whatever that rank that you used to get in ACE Academy, more or less a similar kind of rank that you got in the actual GATE examination also. Yeah. You can say that I replicated what I learned from ACE in the main exam. I just replicated that. Very good. Well said, Mishra. Well said, right? Yes, Mishra, tell us briefly about your educational background. Sir, actually, I come from. I come from 2 cities basically. I have completed some part of my schooling from Delhi, and then I went to MP. Then I completed my schooling from MP up to class 12th, and then I basically I belong to NIT Allahabad. After that, I went for BTech to NIT Allahabad after clearing JEE, and now I'm right now in Delhi. Okay, when did you pass out, Mishra? BTech? Sir, I'm 2021 batch pass out. 2021 batch pass out, NIT Allahabad. Okay. Did you give the GATE exam last
last year? Yes, sir. I gave the GATE exam last time as well. What was your rank last year? Sir, last year I got around 73, 74 marks, and my rank was around 940 something last year. Mr. Mishra, it's Yeah. very interesting story. Yes, sir. Because last time you got a 947th rank, and this Yes. time a very remarkable Yes, sir. achievement, right? Hmm. All the way from 947, this year you got a wonderfully All India 11th rank. All India 11th rank. Very remarkable achievement, Mishra. You deserve double congratulations. But please tell us what modification that you have carried out in your preparation style compared to last year that brought you to this success level. What modifications Sir, you have done? how I got this AIR 11, there is a very interesting story behind this, right? I'll like to share that with you. Please Last tell us, year, sir. if I talk about my preparation level, right? Last year, if I compare that from last year, this year's preparation level, there was not such a drastic difference, which I could say that there was a drastic difference. As such, difference इतना ज्यादा था नहीं. लास्ट ईयर क्या हुआ था सर, मेरे साथ एक छोटी सी चीज प्रॉब्लम के कारण मेरा रैंक काफी नीचे गिर गया था. वो मैं प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. बेसिकली जो सीबीटी टेस्ट होते हैं ना, उसमें जो आपका जो कंप्यूटर का जो सिस्टम होता है, वो बड़ा ही आपको मेजर रोल प्ले करता है. मतलब वो छोटी सी चीज हमें दिखती है, बट इट कैन प्लेस अ मेजर पार्ट समटाइम. लास्ट ईयर मेरे साथ सर क्या हुआ था कि मेरी प्रिपरेशन इस तरीके जैसे इस साल थी. लास्ट ईयर भी मेरे इस एकेडमी में काफी अच्छे नंबर आते थे, and I used to be around 20, 25, 30, 35. I used to be around 20, 25 and 30, 35 last year as well. So last year उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं एग्जामिनेशन हॉल में घुसा, जैसे घर में मैं जब मैं टेस्ट देता था, तो मैं अच्छे मतलब लैपटॉप पे देता था. आई हैड अ गेमिंग लैपटॉप एंड आई यूज्ड टू यूज अ गुड माउस, राइट. सो जब मैं वहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन देने के लिए गया, तो ऐसा वहाँ पे ये हुआ कि वहाँ पे जो सिस्टम्स होते हैं बेसिकली वो इतने अच्छे होते नहीं है. मुझे आइडिया नहीं था कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का. 2017 में मैंने जेईई दिया था, उसके बाद तब तक ऑफलाइन होता था. तो उसके बाद मैंने फर्स्ट मेरे लिए ये था कि मैंने टेस्ट दिया था सीबीटी. तो जैसे ही मैंने एग्जामिनेशन हॉल में मैंने एंटर किया और मैंने कंप्यूटर यूज किया, तो मुझे काफी ही बहुत बड़ा डिफरेंस नजर आया कि जो मैं टेस्ट दे रहा था और जो मुझे वहाँ पे सिस्टम मुझे मिला. तो वहाँ पे मुझे अच्छे से याद है अभी भी कि जो शुरू के 40 मिनट थे, तो मुझे सिस्टम में ही मतलब अपने आप को मैनेज करने में लग गए कि काफी स्लो सिस्टम था. प्लस जो माउस था वो बहुत ही अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा था. कि मैं जैसे वर्चुअल कैलकुलेटर यूज करना होता है ना, तो उसमें बहुत मैं एक बार क्लिक कर रहा था तो मल्टीपल क्लिक्स हो जा रहे थे. तो इस टाइप की चीज हुई थी लास्ट ईयर. तो उसके कारण मेरे शुरू के 45-50 मिनट्स में मैं बहुत कम ही अटेम्प्ट कर पाया, और उसके कारण मेरी रैंक काफी पीछे चली गई. मतलब कि लास्ट ईयर जो मैंने अच्छा अराउंड 70-74 मार्क्स स्कोर किया था, वो पूरा का पूरा लास्ट के 2 आवर्स का ही वो था, मतलब आउटपुट था. शुरू के फर्स्ट आवर में ऐसा मैं कुछ बड़ा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाया था. Okay, that was very bad experience last year, right? Yes sir. Yes sir. बाद में क्या कर रहे थे आपके प्रिपरेशन में? कुछ चेंज कर रहे थे? Yes sir. This time around what I did is, this time हमने क्या किया, मेरे फादर ने, मैंने क्या किया इस बार, हमने डेलिबरेटली एक स्लो पीसी खरीदा इसी चीज के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए. आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं मार्केट गया था इस बार. मैंने सोचा था कि कुछ भी चीज अब I'll leave no stones unturned this time, right? So I went to the market and I purchased deliberately a slow PC, and I started practicing on that PC this time. Means मैंने जानबूझ के बहुत i3 प्रोसेसर का मैंने PC CPU खरीदा और उसको मॉनिटर के साथ कनेक्ट किया. और उसके बाद मैंने क्या किया, मैं जबरदस्ती बैकग्राउंड में और हेवी एप्स रन करता था और फिर मैं टेस्ट देता था, ताकि बिल्कुल मैं एग्जामिनेशन का जो खराब जो कंप्यूटर होता है ना, उसको रेप्लिकेट कर पाऊं. तो मैंने ये किया था. Very wonderful, Mishra. So yes sir. So you used to struggle in your preparation itself intentionally. Yes sir. And एग्जामिनेशन हॉल में और क्या चीज होती है कि सर, जैसे जो इन्विजिलेटर्स आते हैं ना, वो आपको बीच में कभी साइन के लिए, कभी किसी चीज के लिए और कभी किसी चीज के लिए टोकते रहते हैं. आपने देखा होगा. तो मैंने अपनी मम्मी को और अपने छोटे भाई को इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि आपको डेलिबरेटली मतलब आना है अराउंड 45 मिनट 1 घंटे के इंटरवल पे, और ऐसे घूम के कुछ भी करके
जस्ट टू डिस्ट्रैक्ट मी, और फिर आपको चले जाना है। तो दिस टाइम मैंने ऐसी ऐसी चीजें भी करी। फिर जो आपका गेट का जो वो होता है, राइटिंग पैड होता है ना, लास्ट टाइम भी मैं ये करता था, A4 शीट को 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लेते हैं, एंड जितने वहां पे पेजेस आपको मिलते हैं, 12 पेजेस मिलते हैं, मैंने 12 पेजेस ही स्टेपल करके बना लिए थे। दैट आई यूज्ड टू डू लास्ट टाइम आल्सो। तो मैंने वो इस बार भी किया था। और प्लस मैंने जो क्या बोलते हैं, कपड़े पहन के जो मैं गेट एग्जाम में देने वाला था, मैंने वो कपड़े पहन के भी दिया है। मतलब कि दिमाग में पूरा फिट किया था मैंने कि मैं एकदम वो जो सिचुएशन जहाँ पे मैं एग्जामिनेशन हॉल में एंटर कर रहा हूँ वो मेरे लिए अलग ना हो, मतलब मुझे लगे कि मेरे लिए एकदम ही नॉर्मल है कि आई हैव बीन इन दिस। वो सिमुलेशन कर ले आप घर के हाँ पास। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा मैंने अपने दिमाग को सिमुलेशन में डाल दिया था कि मैंने ये चीज कर ली है काफी बार। So that helped you a lot in the actual examination 2020. Yes, yes, yes. So I think all the students who are watching this video, you should observe this particular point that is narrated by Mr. Kaustav Mishra, right? It's very interesting point. So you should Yes, not sir. practice always this mock test in preparation, etc. Always in a ideal, very comfortable situations, because in the actual Yes, sir. examination it may not be so always, right? So if you can prepare for a worst condition in the actual examination, if it was something goes wrong, also you will not Panic. panicked there, right? Yeah, And you will continue in a smooth manner. It's a very interesting point. yeah. I hope this is a good message to all the students from Mr. Kaustav Mishra, right? Mishra, Yes, sir. this year, how was your computer in the actual examination? Sir, to be honest, I'll say this year still the computer was the same. Okay, right. Pathetic. And at least let us wish that but this year I was prepared for it. So okay, you are all prepared, so mentally you didn't get disturbed, right? Yeah. I didn't get disturbed at all. Yeah, let us hope that I was prepared for that. Yeah. Next time onwards, at least this GATE authority will improve this what you call computer facility, etc. in the examination hall. Anyway, that is very nice to hear from you, Mishra. Right. One thing you tell us, see, 11th rank also is a very good rank. What was your mode of preparation as far as the subjects are concerned? Did you follow any specific order? Otherwise, randomly used to prepare. So how you developed this particular subject with you? Sir, first I started with the big subjects. The big 3 subjects are basically, sir, first one is maths and the second one is SOM. If I talk about mechanical, the first one is maths, second is SOM, and the third big subjects are thermal part, thermodynamics, power plant and power plant's applications. So I completed these parts first. Then I remember that I switched on to fluid mechanics, and after that I shifted to design part and I covered design part. And after that, what were the remaining topics means the small topics. If I say industrial engineering and MD, and I am not able to recall some of the other topics. Some small topics, RAC, yeah. RAC I covered that. Air condition, okay. Yeah, RAC. yeah, refrigeration and air conditioning, yes. Right. Okay. So what about that engineering mechanics and other subjects also there? You used to carry out that one after the other, right? Yeah. Means, sir, गेट की प्रिपरेशन में जैसे आपने देखा होगा कि कुछ सब्जेक्ट्स आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं. To be good at SOM, you need to be good at engineering mechanics. Right? You have to have great understanding and great conceptual clarity in forces and vectors and torque and these all in order to learn SOM and TOM. So ऐसे मैंने प्रिपेयर किया था कि मैंने पहले जो बेसिक्स चीज लगती है किसी भी बड़े सब्जेक्ट के लिए मैंने उसको कवर किया. देन आई स्विच्ड ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट. मतलब पहले मैंने अपना बेस बनाया और फिर उसके बाद मैंने बिल्ड किया उसके ऊपर धीरे-धीरे. Just like engineering mechanics initially, then strength of materials, afterwards machine design. ये sequence में करे, right? Okay. Yeah, this sequence I followed. And the same is true for the thermal part as well. First I completed thermodynamics, right? And then HMT and then thermodynamics application. So what about your revision, Mishra? How many revisions you could give? Sir, did you plan anything like a weekly, one revision, monthly, something like that? No. Sir, if I talk about myself, I'm a kind of guy who never plans things, right? Yes. Means I don't plan for 1 month, 2 months, 3 months. I just plan for 3
days, 4 days, right? I take small steps and I try to, take small goals and try to, achieve that goals. That's it. That is my plan. Made some I never made any timetable as well. Never. I Okay. studied when I felt like studying. There were days I studied for 12 hours and there were also days I studied for 3 hours. Okay, good. So Right. what message I want to convey is that doesn't matter how much hours you study, the number of hours you put when you are studying should be effective. बहुत बार ऐसा होता है ना कि हमारी किताबें खुली है, सब कुछ हमें लगता है कि हमारा ध्यान भी है, लेकिन हमारे दिमाग में कुछ अलग चल रहा होता है, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज चल रही होती है कि पीएसयू मिलेगा नहीं मिलेगा, एमटेक में एडमिशन होगा नहीं होगा, बहुत सारी चीजें चल रही होती है. सो आई मेड श्योर दैट when the books are open, and if for instance the tome book is open, I'm thinking about links and flywheel. That's it. I'm not thinking about anything else. That I made sure. Just Right. that. Good. Right. Good. Mishra, one more thing I want to ask you. Did you prepare anything, short notes or micro notes? Yeah. Sir, actually, No problem. रिविजन में मैंने क्या किया था कि शॉर्ट नोट्स अच्छे से मैंने बनाए थे. मतलब कि जैसे कुछ लोग होते हैं, शॉर्ट नोट्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. एक होता है कि शॉर्ट नोट्स और एक होता है माइक्रो नोट्स. माइक्रो नोट्स इज कि आप सब कुछ नहीं लिखते हो, ठीक है, आप कुछ ही चीज मेंशन करते हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसमें आप अटकते हो, ठीक है. और शॉर्ट नोट्स जो मैंने बनाए थे, मैंने माइक्रो नोट्स नहीं बनाए थे. आई ऑप्टेड फॉर शॉर्ट नोट्स. शॉर्ट नोट्स में मैं क्या लिखता था, सारी चीजों को मैं लिखता था, कंसाइज वे में लिखने की कोशिश करता था, बट आई यूज्ड टू राइट एवरीथिंग. One thing here. One thing. Short notes means, for example, we have a subject like a psalm, let us say, strength of materials is there, right? For example. So short notes means totally how many pages you have made there? How many pages, for example? Or one if I subject talk like about a psalm. Approximate. If I talk about SOM is a big subject, right? So my short notes were around 22 pages. Right. Sir, so like that. I wrote everything in short notes. My whole intention behind writing everything in short notes was that I need not to have, I never have to have, open the copy or the notebook again for the revision. I'll just brush through my short notes and I'll get everything. That was my main idea. So without any need for referring. काफी चीजें लिखी थी. हाँ, क्योंकि होता क्या है ना कि काफी बार हर चीज आप रिवाइज नहीं कर सकते बहुत बार. Yes. तो एक क्योंकि बार बार वही चीज जो आपने कॉपी में लिखी है, थ्योरी पढ़ के उससे कुछ नई चीज आप सीख नहीं रहे हैं बेसिकली. तो शॉर्ट नोट्स में पढ़ता था और उसको मैं अच्छे से, मुझे रिवाइज हो जाता था. उसके बाद फिर मैं नए क्वेश्चंस हो गए या कोई नया कॉन्सेप्ट दिख गया, उसको फिर मैं डील करने की कोशिश करता था देख के. ओके मिश्रा, समझ गया मैं. कितने बार रिवाइज करे शॉर्ट नोट्स? अच्छा, रिवाइज किया सर, काफी बार रिवाइज किया मैंने. मैं कभी भी शॉर्ट नोट्स का मैंने कोई काउंट नहीं रखा. मैं क्या करता था, जैसे मैं खाली बैठा हूं ना, कि मैंने पढ़ाई नहीं कर रहा हूं, मैं शॉर्ट नोट्स कभी भी ऐसे रिवाइज, मुझे ऐसा लगता है कि शॉर्ट नोट्स कभी ऐसे रिवाइज नहीं करते कि आपने टाइम बनाया कि अब मैं शॉर्ट नोट्स बैठ के रिवाइज करूंगा. ऐसा नहीं है. शॉर्ट नोट्स में ऐसे रिवाइज करता था कि अब खाना, जैसे मैं खाने जाने वाला हूँ, खाना गर्म हो रहा है, तो मैं बीच में जो टाइम मिलता है मैं कर लेता हूँ. कहीं बाहर जाना है कुछ और उसके बीच में थोड़ा टाइम मिल रहा है, तो मैं ऐसे कर लेता था. मैं बोर हो रहा हूँ ऐसे ही, तो ऐसे उठा के जिसमें पेज फ्लिप करके देख लेता था कि ऐसा है. That's how I used to, use. So you have prepared short notes for all the subjects of your mechanical engineering? Yes, everything. बहुत सारी चीजों के तो मैंने शॉर्ट नोट्स वापस से बनाए नहीं. लास्ट ईयर ही मैंने सब बना रखे थे, बट इस साल जो नई चीजें सीखी थी उसको भी मैंने ऐड कर लिया था शॉर्ट नोट्स में. Very good, right. So these short notes helped you a lot, and also the simulation what you used to do with your mock test series also helped a lot, isn't it? Yeah. Okay, Mishra, very good, right? Very good points you have shared with us. What is your suggestion to the future aspirants? Suppose somebody is there from your mechanical branch, let us say, they want to crack this exam. So what suggestions, what secrets that you want to share? Sir, there is an old saying that self-doubt has killed more dreams than failure ever will. Means कि सेल्फ डाउट ने ज्यादा ड्रीम्स किल किए हैं जितना फेलियर कभी किल एक्चुअली में कर पाएगा. तो जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसे, तो कभी भी सेल्फ डाउट लेके ना घुसे, ठीक है. आपने जितनी मेहनत करी है उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, ठीक है. और अगर आपने प्रोसेस सही किया है, तो आपको रिजल्ट्स भी अभी नहीं तो कभी ना कभी तो मिलेंगे. जैसे मेरे केस में हुआ, मैंने लास्ट टाइम भी आई डिड द प्रोसेस राइट. लक वाज नॉट एट माय साइड, but this time I did the same process again
right? So eventually I ended up, getting on the other side of the line. So I would like to end up with a small quote that if you work hard enough, you put yourself at a place where luck finds you. Okay, right. So you mean to say that if really work hard, sincerely, wholeheartedly, so luck will Yeah. automatically favor you, right? Yeah. Nothing can stop you. Yeah, obviously. That's what I learned in the last year. Okay, right. And one more thing, Mishra. Yeah. Yes, sir. You have made a very rigorous preparation and all with the short notes, mock test series and all. Can you summarize Can you summarize your secret of success? एक दो सेंटेंस में बोलना My secret of success. क्या बोल सकते हैं आप? एक दो सेंटेंस में बोलना है. सर सीक्रेट ऑफ सक्सेस मेरी तरफ से ये रहेगा, जैसे मैं किसी को मैं फॉलो नहीं करता हूँ, मैं अपनी खुद पे बिलीव रखता हूँ मैं कि, और मैं अपने प्रोसेस खुद डिसाइड करता हूँ कि मेरे लिए क्या सही है. तो मैं फ्यूचर एस्पिरेंट्स के लिए भी ये बोलूंगा कि दे डू नॉट नीड टू फिट इनटू समवन एल्स मोल्ड, कि मैंने जो चीजें बोली है जरूरी नहीं है कि वो उनके लिए वर्क कर जाए. ठीक है, तो सभी को अपने लिए देखना पड़ेगा कि उनके लिए क्या सही चीज है. ठीक है, तो किसी से ये नहीं पूछना चाहिए कि वो कितने घंटे पढ़ता था, क्या करता था, कैसे करता था. जो चीजें आपको सीखनी है वो आप सीख लीजिए, लेकिन रेप्लिकेट मत कीजिए किसी का भी. उनको जिस मोड से जिस तरीके से सक्सेस मिला है, देयर इज नो गारंटी दैट यू विल गेट सक्सेस रेप्लिकेटिंग देयर पाथ, राइट? सो बी योरसेल्फ एंड डू नॉट डाउट योरसेल्फ कभी भी. ठीक है, और मैं ये बोलूंगा कि हार्ड वर्क पे आप भरोसा रखिए और प्रोसेस पे आप अपना पूरा वो रखिए फोकस. ठीक है, रिजल्ट्स के तो ऊपर वाले के हाथ में होते हैं, हमें बस अपनी तरफ से बस प्रोसेस पे पूरा का पूरा सही तरीके से रखना चाहिए. मेरे हिसाब से बस मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाहता हूँ. That is true, Mishra. Even क्या है, because different students have different unique strategies of preparation. Absolutely, sir. यही हमें अपने students के यही बताते हैं. You can watch the videos of many toppers. You can listen to the toppers message, but ultimately each student has to prepare his own style of preparation according to his, what you call plans, and he has to execute it, right? Yeah, na, right? That's what you are saying, right? Right. Very good. Yes, sir. Mishra. Sir, one thing. Yes, sir. Please, बोलिए. One thing I would like to add also that this time I appeared for one more paper, XE. Acha, right. Engineering services. In XE also I secured all India rank 17 this time. 17. 17. 17. Yeah. 17, right. 17. Okay, very good. So XE का मैंने डिस्कशन इसलिए किया है कि मैंने इस बार XE का पेपर इसलिए दिया था कि मैं एक बार जाके जो गेट का जो वो है ना, मेरा सेंटर सेम था XE के लिए भी और मैकेनिकल के लिए भी. तो जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द एग्जामिनेशन सेंटर आई वेंट टू गिव द XE पेपर दिस टाइम. एंड कुछ एक्सपेक्टेशन मैं लेके नहीं गया था, मैं जस्ट XE पेपर फील लेने गया था सेंटर का कि कंप्यूटर के बारे में मेरे को इस बार पता चल जाए. क्योंकि मैं कंप्यूटर से काफी डरा हुआ था. Many lessons. Yeah. So that computer, what you faced the problem last year. Yeah. It taught you many lessons, as well to your juniors also who are watching this video, right? Okay. Sir, means मुझे मतलब कंप्यूटर भूतों से ज्यादा भी डर कंप्यूटर से लगने लग गया था, स्लो कंप्यूटर से. So last year मैंने XE लास्ट ईयर इफेक्ट के कारण तो मैंने इस बार XE का पेपर इसलिए भरा था कि जस्ट टू गेट अ फील ऑफ द एग्जामिनेशन. और उसके बाद मैं काम माइंड से देने गया था, सच कुछ एक्सपेक्टेशन रख के नहीं गया था. मेरे कंसेप्ट अच्छे थे तो मैं अच्छे से करके आया, तो अच्छा रैंक आ गया मेरा उसमें भी. इस साल कितने मार्क्स मिले मिश्रा आपको? XE में सर आई स्कोर्ड 84. No, mechanical you're talking about mechanical I got sir 80.55. Sorry, 80.55. Yeah, this year the paper was on a tougher side. Yes, that is true. Yeah, last time it was somewhat easy, right? Yeah. Okay. Mishra, you got a wonderful rank of 11 in mechanical engineering this year. So what are your future plans? What are you going to do with your GATE result 11th rank? सर राइट नाउ अगर मैं अभी की बात करूं तो एज सच मेरे ना ही एमटेक करने के एज सच कोई प्लान्स हैं और ना ही नीटी जाके कोई एमबीए या डिप्लोमा करने के एज सच प्लान्स हैं. बेसिकली मैं अभी सोच रहा हूं कि पीएसयू में ज्वाइन करूंगा अभी. आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब नाउ, मींस आई ज्वाइन पीएसयू. बट वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड दैट कि मैं पीएसयू के अलावा भी आई एम मींस आई लव फिजिक्स. तो यहाँ पे जैसे जेई मेंस के लिए कुछ बच्चे हैं
जो छोटी कोचिंग्स है यहाँ पे अपने आसपास, तो मैं अपना मतलब प्रिपरेशन के समय टाइम पास करने के लिए तो मैंने यहाँ पे भी काफी लोगों की मतलब ऐसे पढ़ाया उन लोगों को भी, तो मैं ये एंजॉय करता हूँ ये। तो अभी मेरे पास जब पीएसयू ज्वाइनिंग तक का जब तक की टाइम है, तो मैं यही काम करना देख रहा हूँ कि मतलब मैं अपना ये पैशन थोड़ा फॉलो करूंगा जब तक That कि is मैं very पीएसयू ज्वाइन wonderful, नहीं right? करता हूँ। If we help your students free of cost, really, it will be very helping them, right? यस। A good move from your side, Mishra. Mishra, और एक बात मैं पूछना चाहता हूँ. हाँ। So, यस सर, गो ऑन। on hearing about your rank, what was the reaction of your parents? सर आपको मैं सही बताऊं तो कैसा फील हुआ रात था को ये मैं लोग? नहीं, रात को मैंने अ, दो अराउंड 1:30 को बताया था। मेरे मम्मी पापा सोए हुए थे, तो इन लोगों को हाँ. मैंने जगाया और मैंने बताया कि रैंक इतना इतना आया है। मेरी मम्मी से को बताया कि रैंक 11 है, तो मेरी मम्मी ने बोला कि 11 है, तो मैंने बोला हाँ। तो मेरी मम्मी बोली ठीक है, और मेरी मम्मी सो गई। Okay. What a father reaction? फादर ऑल्सो डिडंट रिएक्ट, मींस इतना मैंने काम इस बार कर दिया था कि वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ठीक अच्छा अच्छा अच्छा. होने वाला है। They know already that तो you are देयर going वाज to get a good rank, right? Okay. या क्योंकि रैंक प्रेडिक्टर मैंने यूज किया था उस समय, तो Hmm. रैंक प्रेडिक्टर में भी समाव आपको थोड़ा आइडिया लग जाता है। Right. तो उसमें लग गया था, तो मम्मी को मैंने बताया था, इन लोग मम्मी पापा को, तो इन लोगों को पता था। एज सच कोई इतना वो रोने धोने वाला रिएक्शन जैसे हम देखते हैं टीवी मूवीज में वैसा नहीं था, Right. नॉर्मल था। Okay, very good, Mishra. You have shared with us many useful points. I think these points will be very useful for the other सर juniors. वन Do you मोर want थिंग to आई share वुड anything else? Anything else? या सर, बोलिए. वन मोर थिंग आई वांट टू शेयर दैट कि लास्ट ईयर क्या हुआ था कि जब मैं गेट का एग्जाम देके आया था ना, 73 मेरे 74 नंबर थे, रिजल्ट जस्ट आउट हुए थे। उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने काफी मेहनत करी थी एंड स्टिल आई फेल्ड, राइट। Hmm. आफ्टर पुटिंग सो मच हार्ड वर्क आई वांटेड पीएसयू or Hmm. at least a good rank, at least if not PSU. So Hmm. I wanted a good rank and I failed. Means my rank was around 940. So I was absolutely shattered. Means I can't tell you what I felt that day. But Yeah. बहुत खराब लग रहा था मुझे। मुझे लग रहा था कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, doesn't Hmm. matter how much I work hard, luck will eventually find a way, to hold me Hmm. and not let me go to the finish line. So मेरा ये mentality बन गया था कि मैंने ये मान लिया था कि मैं शायद बना ही नहीं उस चीज के लिए, कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो उसके बाद मैं आपको छोटा सा एक चीज शेयर करूंगा कि हुआ ये था कि अराउंड जुलाई अगस्त का टाइम था, ओलंपिक्स वाज अराउंड द कॉर्नर, राइट। सो आई वाज रैंडमली स्क्रोलिंग थ्रू द यूट्यूब। So I watched a video of Olympic official channel, Abhinav Bindra's video, right? So in that video, हुआ ये था कि 2004 में एथेंस के ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा was considered to be the top contender for the medal, gold medal, उसको or शूटिंग में at गोल्ड least मेडल मिला ना, शूटिंग shooting 10 meter गोल्ड rifle, मेडल मिला उसको. हाँ. 10 मीटर राइफल शूटिंग के लिए अभिनव बिंद्रा को उस समय 2004 की बात है, एथेंस ओलंपिक्स में टॉप कंटेंडर माना जा रहा था कि इंडिया की तरफ से ये पहला इंडिविजुअल मेडल अभिनव बिंद्रा लेके आ सकते हैं, राइट। और अभिनव बिंद्रा ने उसके पहले के ओलंपिक्स में भी काफी अच्छा किया था, फाइनल तक वो पहुंचे थे। ही कुडंट गेट द मेडल बट he performed really well. He was just a teenager back then. उसके बाद फिर उन्होंने 4 साल काफी मेहनत करी है। He was all set, to at least get a bronze for the country. First individual medal होता वो इंडिया के लिए। बट उस समय क्या हुआ कि वो फाइनल में जब पहुंचे ना, तो अभिनव बिंद्रा what he did was he fired the worst 10 shots of his life. मतलब अभी तक जो भी उन्होंने फायर किया था, वर्स्ट 10 शॉट्स उन्होंने ओलंपिक के फाइनल में फायर की। तो जब उनका एक भी मेडल नहीं आ पाया, ब्रॉन्ज भी नहीं मिला इसके कारण उनको, तो वो एकदम घर वापस लौटे और एकदम वो भी शैटर्ड थे एकदम, मतलब कि समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। पूरी जिंदगी ओलंपिक के लिए डिवोट कर दी थी एंड स्टिल इतने बिग स्टेज पे जाके वो फेल हो गए, ठीक है। तो फिर उनको 5 दिन बाद एक उनके कोच का कॉल आता है कि आप जो ओलंपिक का जो फ्लोर था ना, दैट फ्लोर वाज अ वुडन फ्लोर, राइट। सो ओलंपिक फ्लोर वाज अ वुडन फ्लोर एंड द टाइल्स ऑफ दैट फ्लोर वर लूज। जो अभिनव बिंद्रा जिस टाइल पे खड़े थे, आप वो वीडियो देखेंगे उसमें क्लियरली कहा गया कि टाइल्स लूज थी। तो एक शूटर के लिए इतना छोटा सा भी इम्बैलेंस बहुत एम करने के लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाता है। तो वो कोई भी बड़े से बड़ा शूटर भी होता, वो भी अच्छे से एम नहीं कर पाता। तो जब अभिनव बिंद्रा को ये बात पता चली, तो अभिनव बिंद्रा ने हद से ज्यादा मेहनत करना स्टार्ट कर दी। उन्होंने अब वो शेकी टाइल्स पे भी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद फिर अपना गन को भी खराब गन से भी शूट करना स्टार्ट कर दिया गया। और फिर उन्होंने उसके बाद उन्होंने
क्या बोलते हैं कंसंट्रेशन के लिए याक मिल्क और ये सब भी पीना स्टार्ट कर दिया। तो मैंने जैसे ही वीडियो देखी ना, तो मैं जिस मोड में था, मुझे लगता था कि मैं मेहनत करूंगा और मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे फेल हो जाता हूँ हर बार ना। तो मुझे लगने लग गया कि मेरे साथ जो हुआ है वो बहुत छोटा है, और भी बड़े बड़े लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके फेल हुए हैं, Right. स्टिल Good. उन्होंने अपना काम किया है। ठीक है, तो मैंने उस समय गिव अप कर दिया था कि मे बी आई एम नॉट मेड फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। तो जुलाई में मैंने वो वीडियो देखा, मोटिवेशन नहीं कहूंगा मैंने बस इसको मैं सेल्फ रियलाइजेशन कहूंगा कि मुझे रियलाइज हो गया कि मेरी जो प्रॉब्लम्स है दे आर नॉट एज बिग जितना मुझे लग रहा है। ठीक है, तो उसके बाद फिर मैंने एक और अटेम्प्ट देने का सोचा, एंड आई थॉट अबाउट फिनिशिंग इट अप दिस टाइम, एंड इवेंचुअली आई डिड इट। Actually, I should say that Abhinav Bindra also played some role in your success, right? Because या 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 see, या या preparation बिल्कुल wise, you बिल्कुल। didn't make any much difference this year. Only thing is your mental attitude changed a या little bit, right? या So for that, I should say that Abhinav Bindra also contributed something, या right? या It should या be inspiration for you. Because या people, या I have seen that students, many students, they work very hard, right? Ultimately, they miss that what you call inspiration or motivation somewhere. So you need to have a bit of inspiration or motivation also. यस That सर, played a good role in your success, right? यस सर। How Abhinav अभिनव Bindra बिंद्रा हैज, struggled when he was practicing and all, right? या आई That's कनेक्टेड right. आई कनेक्टेड विद दैट एक्चुअली, कि Right. मुझे लग रहा था कि मेरी प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं। फिर मुझे जब पता लगा कि एक जो इंडिया इतनी बड़ी कंट्री के जो कंटेंडर थे वो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके फेल हो गए, तो माय प्रॉब्लम्स आर एब्सोल्युटली टाइनी इफ आई कंपेयर इट विद हिम। सो दैट्स हाउ आई केप्ट मींस आई गॉट अ किक दैट डे कि अब मुझे करना चाहिए, अब लास्ट अटेम्प्ट एक बार देना चाहिए, एंड दिस टाइम I'll try my best and I'll try to turn the tables around. Right. Good. Right. Good. Good. Right. That is one of the important point also. Right. Right. Good. Yes sir. Okay, Mishra, it's very nice to talk to you. Do you want to share Yes anything sir. else? और कुछ No बोलना है sir. basically? One Because thing I very would interesting talking to you. That's why. okay sir, sorry if I went off track, means मैंने काफी कहानियां बताई, मतलब Actually, students now they show more interest in listening to this type of inspirational या story. या ये एक सक्सेसफुल स्टूडेंट के पीछे थोड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी है ये. yes sir. Yeah, really. Yeah, you are saying about, you are about to say anything. कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर एक और चीज मुझे ऐड करना था कि एक बहुत सारे स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो पूछते हैं कि एक सबके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू बी काम इन प्रेशर सिचुएशंस, और कैसे पैनिक ना करें। तो उनके लिए भी मुझे एक छोटी सी बात बतानी थी कि सबसे बेस्ट तरीका होता है टू बी काम इन प्रेशर सिचुएशन इज टू पुट योरसेल्फ इन दैट पोजीशन अगेन एंड अगेन। सिंपल चीज है ये, कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मेडिटेशन करके और छोटी मोटी और चीजें होती है जैसे कि उस दिन जाके काम हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको अब जैसे मैंने इस बार टेस्ट को ऐसे दिया था, दिस टाइम अराउंड आई गेव अराउंड 45 टेस्ट, मींस yes I gave all the tests and I opted for some test other test also, so I gave 30 to 45 full length tests this time around, means मेरा प्रिपरेशन पूरा पहले से ही था। मैंने अराउंड नवंबर के एंड से ही टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया था और हर 2 दिन 3 दिन पे मैं टेस्ट देता था। तो मैंने अपने आप को उस सिचुएशन में इतनी बार डाल लिया ना कि मुझे अब टिकर से भी डर नहीं लगता था, और मुझे लगता था कि ये नॉर्मल चीज है मेरा, मतलब मुझे लगता था ये नॉर्मल लाइफ है ये। तो प्रेशर से ऐसे ही, मेरे हिसाब से प्रेशर ऐसे डील कर सकते हो आप कि अगर आपने उसी सिचुएशन में आपको अपने आप को 50 बार डाल दिया तो 51st टाइम आपको लगेगा ही नहीं कि आप प्रेशर सिचुएशन में हो, यू विल फील हैबिचुअल। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, या कि किसी कोई किताब पढ़ने से, कोई ऐसे यूट्यूब वीडियो देखने से, कोई मंत्र पढ़ने से यू वोंट लर्न हाउ टू गेट काम। कुछ लोग होते हैं जो मतलब जेनेटिकली काम होते हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल पर्सन लाइक मी। हम लोग जेनेटिक, मैं आई एम नॉट अ काम पर्सन, तो मैंने अपने आप को बार बार सिचुएशन में उस डाल के अपने आप को मतलब काम करने की कोशिश करी। दैट्स हाउ आई डिड। Very good, Mishra. Well said. I think all your point that you have shared with our Yes Academy, right, contributed you a lot in our success story. Definitely will Yes, sir. help many juniors, many future aspirants also, right? Yes sir. So Yes sir. I, on behalf of Yes Academy, I once again congratulate you, wish you good luck in all your future endeavors. God bless Yes you, sir. my dear Kaustav Mishra. Thank you sir. Thank you for having me.